welcome to the Maluka IAS. Today we are going to discuss about the CBIC detect 62k crore GST evasion by the fake invoices. So it is not all about the GST evasion or the GST, but it is all about the role of the CBIC, which is important in this particular picture. So first we need to understand what is GST. Okay, so let me simplify. GST means goods and services tax. So it is a tax that is being charged on the consumption, and it is a consumption or destination based tax. It is charged whenever you are buying or selling something, and it is a kind of indirect taxes. You all know GST को इंट्रोड्यूस किया गया था when in 2017. So 1st of July 2017 से GST को इंट्रोड्यूस किया गया था. तब से लेकर अब तक हमने ये पाया कि it has subsumed the 17 indirect taxes, and इसके साथ साथ में GST में बेसिकली क्या किया गया है कि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि GST ने अपने परव्यू में बाकी सब जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको ले लिया है. बट एक बात आपको अभी यहाँ पे ध्यान में रखनी है क्या कि GST चार्ज किया जाता है ऑन दोज मैन्युफैक्चरर विच exceeded their turnover from 40 lakh rupees. Fine. So for the manufacturing it is 40 lakh rupees, and for the services it is 20 lakh rupees. So 40 lakh से ज़्यादा अगर कोई टर्नओवर कर रहा है then they have to register for the GSTN number, that is GSTN identification number, and then they have to file the GST. Okay, fine. उसके बाद ये क्यों बताना ज़रूरी है, इसका यूज़ होगा कब, when we are be talking about the fake invoices. Fine. Now we are going to understand about the CBIC. Okay, as the name suggests, CBIC is a central board of indirect taxes and customs, and we know GST, it has subsumed the 17 indirect taxes into it. Fine. CBIC, as the name suggests, it is a statutory body which comes under the Central Board of Revenue, Central Board of Revenue Act 1963. It comes under the Department of Revenue. Why under the Department of Revenue? Because indirect taxes, because it is managing the indirect taxes, it means it involves some fund that is being collected from the GST. So GST से जो भी collect किया जाता है, even from the custom duty. Okay, let me just tell you what is custom duty. Custom duty, it is being charged whenever you are importing or exporting something. When government want to control the import and the export amount, then government is basically charging the custom duty. So it is also a kind of indirect tax. Custom duty से जो भी इनकम मिलता है या जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, and from the GST जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, that comes under the direct purview of the CBIC, and CBIC it comes under the direct purview of Department of Revenue, which is a part of Finance Ministry. So it is like that, the Government of India, then the Finance Ministry. After the Finance Ministry there is the Department of Revenue, and this Department of Revenue इसके अंदर आता है CBIC, that is related to the indirect taxes. Okay, for now I am not talking about the direct taxes, I am only talking about the indirect taxes. तो इस टाइम पे आप भी अपना थिंकिंग उसी के अकॉर्डिंग रख लेना. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मेन फंक्शन है CBIC का वो है कि GST का जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, जिस भी तरीके से होता है, इसके इनवॉइसेस से रिलेटेड इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो CBIC देखता है. अभी CBIC हाल फिलहाल में न्यूज़ में था क्योंकि CBIC ने जो फेक इनवॉइसेस की वजह से GST इवेजन हो रहा है इसको दिखाया है, एंड इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 62k करोड़ को डिटेक्ट किया है, एंड देन उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल चार्जेस जिस भी तरीके से होंगे वो किया जाएगा. अब हमें समझना होगा हाउ GST इज बीइंग इवेडेड. उसको समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट. Okay, so input tax credit, it is a kind of a mechanism. As the name suggests, input tax credit. Credit means you are getting something, input means on the input. Okay, let me specify in this way. For a business, what is your input? So for a business, your input is, it may be the raw material, it may be the salary, wages, expenditures, any kind of raw material or something with which you will be creating a product. Okay, so for the input, suppose you are a businessman and you are engaged in a business of manufacturing dresses for the girls. Fine.
So because you are manufacturing dresses for the girl, so you for manufacturing the dresses you need a raw material in the form of a fabric. So this fabric, if you are purchasing this fabric, then the seller of your fabric, that seller must be charging a tax over you. For example, आप गए हो, आपने फैब्रिक लिया है, सपोज करिए आपने 1000 मीटर जो है फैब्रिक लिया है, आपके सेलर ने आपको इनवॉइस बना के दिया होगा। वो जो आपका सेलर है जिसने आपको इनवॉइस बना के दिया है, उसने आपसे जीएसटी चार्ज किया होगा एंड वो जीएसटी आपके जो बिल आपको मिला है उसमें वो इंक्लूडेड होगा। सपोज करिए वो जो बिल था उसमें जो जीएसटी चार्ज किया गया था वो कितना था, 200 रुपीज। सपोज करिए फिर आपने किसी एक्स से परचेज किया है, दैट इज 200, वाई से परचेज किया है, दैट इज 150 एंड देन आपने जेड से परचेज किया, दैट इज 50। तो ये क्या है, ये है रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल के ऊपर आपने जो भी टैक्स पे किया है, दैट टैक्स वुड बी कॉल्ड एज द इनपुट। अब आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है, ऑन दैट प्रोडक्ट इफ यू आर पेइंग टैक्स दैट इज 500। सो इनपुट के ऊपर आपने टैक्स कितना पे कर दिया है, अगर हम इसका टोटल करते हैं 400, आउटपुट के ऊपर कितना 500। अब 400 प्लस 500 इट मीन्स टोटल जो टैक्स का अमाउंट है वो कितना बनता है, वो बनता है 900। बट इसी रॉ मटेरियल से आपने ये प्रोडक्ट बनाया है और उस रॉ मटेरियल पे यू हैड पेड 400 रुपीज। सो इट इज नॉट लॉजिकल कि आप वापस से 500 दो एंड टोटल टैक्स का अमाउंट बने 900। इस वजह से जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। मींस आउटपुट पे अगर आपने 500 पे किया है एंड अर्लियर यू हैड पेड 400 ऑन द इनपुट, तो आपको अब या तो सिर्फ 100 रुपीज पे करने की जरूरत है, या तो अगर आप वापस से 500 पे करते हो तो आपको क्रेडिट की फॉर्म में 400 हम वापस करेंगे। हम मीन्स गवर्नमेंट वापस करेगी। सो इसको वापस से सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं कि नॉर्मली अगर आपको देना है कि प्रोड्यूसर को कितना टैक्स देना होगा, सो द टैक्स पेड ऑन दी आउटपुट माइनस टैक्स पेड ऑन दी इनपुट एंड 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 रुपीज। सो एक्चुअली में आपको सिर्फ 100 रुपीज ही टैक्स पे करने की जरूरत है एंड दिस इज 400 इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब समझिए होता क्या है। 400 आप पे कर चुके हो, 500 भी आपने पे किया है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके अकाउंट में, गवर्नमेंट अपने पास एक अकाउंट बनाती है, उस अकाउंट में गवर्नमेंट आपकी तरफ से 400 जो है आईटीसी के नेम से डिपॉजिट कर देगी। अब इस 400 को आप कैश में नहीं निकाल सकते हो, बट इस 400 को आप आगे अपना जीएसटी पे करने के लिए यूज कर सकते हो। सो एक क्रेडिट की फॉर्म में ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये पूरा मैकेनिज्म आई होप समझ में आ गया होगा। अब हाल फिलहाल में पाया गया क्या कि जो जीएसटी का नवंबर में जो कलेक्शन हुआ है वो ग्रो किया है 11% से एंड इट इज 1.46 लाख करोड़। ग्रो किया है कहाँ कि नवंबर, ये हम बात कर रहे हैं नवंबर 2020 की, एंड नवंबर 2021 में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में 11% ग्रो हुआ है। इट मींस ओवर दिस स्पैन ऑफ 1 ईयर, नवंबर से अगर कंपैरिजन करें तो इट हैज इंक्रीज टू 11%, बट ये कितना हुआ है 1.46 लाख करोड़। अगर हम इसी के कंपैरिजन में देखें, अक्टूबर 2022 में इट वाज 1.52 लाख करोड़ रुपीस। सो अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्पैन में आता है एंड वहाँ टैक्स कलेक्शन हो रहा है, सो अगर टैक्स कलेक्शन गिर जाता है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे हमें स्क्रूटिनाइज करने की जरूरत है कि व्हाट इज द मैटर। सो इसमें जब पाया गया तो सीबीआईसी ने देखा, यस इन द अक्टूबर इट्स अ फेस्टिव सीजन, इन द फेस्टिव सीजन देयर इज मोर बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स व्हाई देयर इज मोर जीएसटी कलेक्शन, बट व्हाई देयर इज अ रिडक्शन, इट नीड टू बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड उसको फिर स्क्रूटिनाइज किया गया। अब हम समझते हैं कि फेक इनवॉइसेस की हेल्प से कैसे होता है। सपोज करिए कंपनी ए एंड देयर इज अ कंपनी बी। कंपनी बी इज बाइंग और परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंपनी ए। सपोज करिए आप कोई सामान लेने जाते हो, तो जिससे आपने सामान परचेज किया है, फॉर एग्जांपल द कंपनी ए, तो वो आपको क्या करेगी, इनवॉइस बना के देगी। इस इनवॉइस में होगा क्या, द क्वांटिटी यू हैड परचेज एंड द प्राइस यू नीड टू बी पेड। फाइन।
बट फेक इनवॉइसेस कैसे बनाया जाता है सो दैट कि आप जीएसटी से बच पाओ। अब मुझे ये बताइए इस इनवॉइस में जीएसटी का अमाउंट ऐड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट जो है वो ऐड होगा। अब हम वापस आते हैं कि फेक इनवॉइसेस की हेल्प से ये कैसे होता है। सो समझिए यहाँ पे कंपनी ए एंड कंपनी बी। अभी कंपनी बी क्या करती है, एक्चुअली गुड्स परचेज नहीं कर रही है कंपनी ए से, और कंपनी ए को बोल देती है कि आप जो है फेक बिल जो है जनरेट कर दीजिए। अब आप सोचोगे कंपनी ए फेक बिल अगर जनरेट कर रही है तो इस फेक बिल में यहाँ पे उन्होंने जीएसटी को शो किया होगा, तो बिल्कुल किया होगा। बट कंपनी ए के ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं लग रहा है? कंपनी ए के ऊपर इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि याद कीजिए पहले मैंने क्या पॉइंट बताया था, दैट देयर मस्ट बी 40 लाख रुपीस फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड फॉर अ सर्विस कंपनी इट मस्ट बी 20 लाख रुपीस और मोर देन 20 लाख रुपीस। इफ दिस कंपनी ए 40 लाख रुपीस से कम है इनका टर्नओवर, तो इनके पास एक स्पैन है, ये उस स्पैन में भी अगर आ जाएंगे, सपोज करिए अर्लियर इनका 35 लाख मैन्युफैक्चरिंग था, अभी कितना हो गया है 5 लाख का ये फेक बिल बनाकर 40 लाख, तो अभी ये जीएसटी के पर्व्यू में नहीं आ रहे हैं तो इन्होंने फेक बिल बना के दे दिया। अब कंपनी बी के पास फेक बिल है जीएसटी, सपोज करिए कंपनी बी इस गुड्स को जो कि परचेज नहीं कर रही है इसको शो कर रही है एज ए इनपुट। अब क्योंकि ये इसको एज ए इनपुट शो कर रही है तो इस इनपुट के ऊपर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सपोज करिए इस 5 लाख पर इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है 50,000, ये आईटीसी कंपनी बी के पोर्टल में डिपॉजिटेड होगा। अब क्या होता है, यहाँ ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये कैसी हुई है, ये हुई है फेक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंपनी सी। अब कंपनी सी क्या कर रही है, गुड्स परचेज कर रही है बी से, एंड बी क्या कर रहा है, वो इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है। अब जो वो इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में गुड्स परचेज हुई है, तो यहाँ जो बिल होगा वो फेक नहीं होगा। बट जो कंपनी बी है उसके पोर्टल में आईटीसी जो डिपॉजिटेड है वो आईटीसी फेक इनवॉइस की वजह से है। इस तरीके से सी और बी की ट्रांजैक्शन में फेक इनवॉइस को ट्रेस कर पाना इज सो मच डिफिकल्ट, एंड ए और बी के केस में हम कर ही नहीं सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ए इज नॉट अंडर द जीएसटी, एंड इफ इट इज अंडर द जीएसटी एंड नंबर देन ऑल्सो दे आर पेइंग वेरी मिनिमल टैक्स ड्यू टू द स्पैन ऑफ द टर्नओवर। सो बिकॉज ऑफ दैट अब सपोज करिए ये चेन आगे बढ़ती चली जाती है, यहाँ पे कंपनी डी के साथ ट्रांजैक्शन होती है एंड एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो भी यहाँ ट्रेस कर पाना इज वेरी मच डिफिकल्ट। बट सीबीआईसी ने ये करके दिया है। कैसे किया है? उन्होंने ये जस्ट चेकिंग की है कि किस तरीके से जो ज़ोंबीज या फिर इनको बोला जाता है शेल कंपनीज, शेल कंपनी या ज़ोंबी कंपनी क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये अपने जो इनका इनको इनकॉर्पोरेट करने का जो इसके पीछे का एक रोल होता है या एक ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो, वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है, वो जस्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से टैक्स से बचना है। तो सीबीआईसी ने ये डिटेक्ट करके दिया है एंड उसी के डिटेक्शन के बाद ही उन्होंने 62K करोड़ का जो है आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने डिटेक्ट करके ये पाया है कि जीएसटी इवेड हुआ है। ओके, सो इसके बाद वापस से एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि बेसिकली सीबीआईसी ने ये एक्चुअली वर्किंग किया कैसे है। तो उसके लिए बेसिक एक वर्ड मैं आपको बोल के बताऊंगी, कॉल्ड एज दी RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से आप ये पूरे के पूरे सिस्टम को ट्रेस कर सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।